Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from Amal Convent Group of Schools. Students, in your class, we are nowadays studying third chapter in this book, Snapshots. The third chapter, that is Ranga's marriage. We have already got the two videos in this class. In this chapter, and it is the third video. So let us recapitulate the story. In the very beginning, the author talks about the title, Ranga's marriage. सबसे पहले तो वो रंगाज मैरिज जो टाइटल है उसके बारे में बातचीत करता है कि उसने रंगाज मैरिज ही क्यों सिलेक्ट किया, कोई और टाइटल क्यों नहीं चेक किया. आफ्टर दैट हमने देखा कि जो है ऑथर ने अपने गांव होसाहल्ली को ग्लोइंगली, ही डिस्क्राइब्स हिज विलेज होसाहल्ली very glowingly. Though this village is not very important one, this village has not been any mention in the geography book. It is not shown in the map also. Despite of that, he and the people of the village loves their village very much. वो अपने गांव को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है. और ऑथर स्टोरी में सबसे पहले अपने गांव के बारे में खूब अच्छे तरीके से ग्लोइंगली वो बात करता है. अपने गांव की ढेर सारी चीज़ों को वो डिस्क्राइब करता है. He describes that Hosahalli is a small village in Mysore, finds no mention anywhere in the geography books or even on maps, but its residents have a great love for it and consider it as important as Mysore is to India. People living in the village, including the narrator, are a happy and contented lot. Gundabhatta, the doctor, has traveled to quite a few places but considers his village worthy of glowing references. The life of the villagers is simple and unaffected by the so-called modernism of the cities. The villagers take pleasure and pride in the simple joys and privilege their village has to offer them. Raw mangoes, flowers, and leaves of the pond creeper. The elders of the village, including the narrator, believed in the tradition of arranged and early marriages that we shall discuss in this chapter right now, in today's class. They are also in the influence of different planets in the life of individuals. And elderly woman who comes to see Ranga on his return from Bangalore is happy and satisfied to find his sacred thread, Janewra, intact and goes home contented that he has not lost his caste. Even Ranga, although educated in the city, is though influenced at some extent, but he is also following the old pattern of the village of touching feet of the elders. 10 years ago, Hosahalli was no way influenced by English language. Here, author has very beautifully described this aspect of the chapter. The narrator sarcastically terms English as priceless commodity because of the increasing interest his fellow villagers were showing in the language and its culture. It being a foreign language, he personally does not seem to like its intrusion and interference in the Kannada language.
He recalls an incident that took place 10 years ago and involved Ranga, the accountant's son, who was the first youth to be sent to Bangalore to study. At that time, English was a foreign language for the village folk of Hosahalli. Its words had not yet invented Kannada, their mother tongue. Gradually, however, things changed and English words started appearing in the everyday conversation of people. The writer used this intrusion of English in everyday Kannada lives as disgraceful. To bring home his point, he narrates an incident in which a woman who was selling firewood went home muttering because she did not understand the English word change for money. Next, the narrator points a picture of life in his village. People in the Hosahalli led a simple life. All the people are in simple life. Okay, but due to intrusion of foreign culture and Western education and also English language and culture, the age-old views and traditions that were deep-rooted in young minds were now getting loosened. On learning about the narrator's views, one feels that it is good to respect one's own culture and language. However, today one needs to be more broad-minded and accommodating so that one is able to widen one's origin and become more cosmopolitan, even if one picks up that knowledge through the medium of foreign language. So in this way, we have tried to get a lot of information about the story. We had seen that Ranga, the accountant's son, goes to study Bangalore. When he returns, his homecoming was celebrated by the villagers by coming and visiting Ranga, whether he has changed or not, and they were satisfied that they had not changed at all. He has not changed at all. Even the narrator was also gone over there. He also got satisfied when he touched the feet of Ranga. So, in the last class we have read up to here. Let us proceed today's class. So open your book on page number 19. Yes, from here. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. So the narrator describes that in that afternoon when he was resting, at that time Ranga came to narrator's house and he was having a couple of oranges in his hand. narrator डिस्क्राइब करता है कि उस दोपहर जब वो आराम कर रहा था उस समय रंगा उस पर खड़ा था है अपने हाथों में कुछ एक ऑरेंज लेकर के. अ जेनरस कंसिडरेट फेलो. नरेटर रंगा को जेनरस और कंसिडरेट फेलो डिस्क्राइब करता है. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव ए मैरी सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी. आई थॉट. नरेटर को लगा कि अब चूंकि ये पढ़ लिख गया है, शहर से पढ़ाई लिखाई करके आ गया है, तो अब इट विल बी बेटर फॉर हिम टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन. अच्छा ये होगा कि अब ये शादी वादी हो जाए इसकी और ये सेटल डाउन हो जाए और समाज की सेवा करे. फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट. सो कुछ देर तक हम लोग यहाँ वहाँ की बातें करते रहे. अच्छा ये एस्पेक्ट जो है थोड़ा सा जो विलेज फोक होते हैं उनके अंदर होता है कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि भाई जो यंग फेलोज़ हैं अगर वो शादी योग्य हो गए हैं तो उनकी शादी वादी करा दी जाए.
So, considering it their duty to get the young ones married at proper time, नरेटर ने के दिमाग में आ गया कि भाई अब रंगा जो है आ गया है वापस, तो इसकी शादी करा दिया जाए। तो मैं सीधे उससे बातचीत करने के लिए देन आई केम टू द पॉइंट, मैं उस बातचीत शुरू किया, टू द पॉइंट बात शुरू करने। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? और बताओ शादी उदी करने का कब तक प्लान है? सो रंगा तो नरेटर के लिए शॉकिंग स्टेटमेंट दे दिया, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ। उसने कहा कि नहीं, मैं अभी शादी उदी करने का कोई विचार नहीं है हमारे दिमाग में। वाई नॉट? ऐसा क्यों? तो अब देखिए रंगा अब अपनी जो है ओपिनियन, जो उसका ओपिनियन है रिगार्डिंग मैरिज, और इसका ये ओपिनियन बेंगलोर में स्टडी करने के कारण हुआ, क्योंकि बेंगलोर में स्टडी के दौरान जो उसके ऊपर वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लैंग्वेज का इम्पैक्ट पड़ा है, उससे इसका जो ओपिनियन है, उससे जो उसके जो आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग मैरिज वो चेंज हुए। तो वो क्या अपना एक्सप्रेस करता है, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। भाई शादी करने के पहले सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि सही लड़की मिलनी चाहिए। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, कहता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो अभी 6 महीने पहले जिसकी शादी हुई। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 साल के हैं, एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उनकी वाइफ 25 की है, ऐसा बताया गया है मुझे। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। अब दोनों सही एज में हैं, भाई 30 साल का हस्बैंड है, 25 की वाइफ है, दोनों की एज सही है शादी की। तो अब वो चूँकि दोनों राइट एज में है, इसलिए वो बातचीत कर सकते हैं। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो आपस में प्यार से बातें कर सकते हैं। लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। अब मान लीजिए मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ। इफ़ आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मैं बहुत ही यंग गर्ल से एक शादी कर लेता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। If she is very young, she will not be able to understand my emotions. She will not be able to, what you can say, coordinate my words with my emotions. जो मैं बोलूँगा वो मेरे शब्द को मेरे इमोशंस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी। मैं बोलूँगा उससे प्यार से, और उसको लगेगा कि मैं उससे गुस्से में बोल रहा हूँ। रिसेंटली अभी भी की बात है, अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। अभी भी एक ट्रूप था, उसने बेंगलोर में एक जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो कालिदास का प्ले है उसको स्टेज किया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर। देखो रंगा कहता है कि अगर शकुंतला आजकल के समय की जैसी ब्राइड्स होती हैं, अगर उनकी तरह यंग एज की होती तो निश्चित तौर से दुष्यंत को शकुंतला से प्यार ना हुआ होता। एक्चुअली ये कहानी उस टाइम की है, उस दौरान की है जब गांव में बहुत ही यंग एज में शादियां हो जाती थी, जिन्हें हम कह सकते हैं कि बाल विवाह का जो प्रचलन था गांव में। लड़कियां अभी 9 साल 11 साल की हैं, तभी शादी हो गई उनकी, तो यंग एज में शादी हो गई। तो वही वो कहता है कि अगर आजकल के तरह, यहाँ आजकल प्रेजेंट डे ब्राइड्स का मतलब हम लोगों का टाइम नहीं है, इस टाइम की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो है रंगा उस टाइम की बात कर रहा है जब ये कहानी का
बात हो रहा। उस समय गांव में कम एज की लड़कियों की शादी हो जाती थी और लड़कों की भी कम एज में ही शादी हो जाया करती थी। तो वही कह रहा है कि अगर शकुंतला आजकल की दुल्हनों की उम्र की होती तो निश्चित तौर से दुष्यंत को दुष्यंत शकुंतला के प्यार में ना पड़ते। क्या होता? इज देयर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले? अगर ऐसा हुआ होता, शकुंतला बहुत यंग होती, तो आखिर कालिदास के प्ले का क्या होता? इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। ये पहली चीज है कि अगर कोई आदमी शादी करता है, किसी आदमी की शादी होती है, तो उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो कि मैच्योर है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। एक इमेच्योर लड़की से शादी करने से बेहतर है कि आप बैचलर रहो। दैट इज वाई आई एम नॉट मैरिड नाउ। यही कारण है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसने एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया उसकी शादी ना करने का। इज देयर एनी अदर रीजन? और कोई कारण है? अब एक और कारण देता है वो कि वो शादी क्यों नहीं करेगा। क्या? अ मैन शुड मैरी टू अ गर्ल ही एडमायर्स। व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसको पसंद करता हो और उसको एडमायर करता हो। What we have now are arranged marriages। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये भी वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर पे वेस्टर्न लैंग्वेज के इम्पैक्ट को शो कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर तो उस समय अरेंज मैरिजेस का था। एडमायर करने का मतलब ही नहीं था। शादी के पहले किसी को एडमायर करने का कोई सिस्टम ही नहीं था हमारे कल्चर में। ओके, तो वो कहता है कि वो हम लोग के यहाँ क्या है, वो वी हैव नाउ, हमारा कल्चर क्या है कि हम लोग अरेंज्ड मैरिजेस करते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर आर शोइंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। मतलब कि वो कहता है कि मैं या कोई भी आदमी एक इमेच्योर गर्ल को एडमायर कैसे कर सकता है? एक ऐसी गर्ल जिसको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं है, जिसके जिसकी एक तरफ तो मिल्क लगा होता है उसके चेहरे पे और उसके दूसरे चेहरे पे उसके चेहरे के एक साइड में मिल्क लगा है और उसके दूसरे चेहरे के अदर साइड में गीलापन है, या फिर वो इतनी छोटी है कि उसको अपने फिंगर्स को बाइट करने का तरीका नहीं है। तो आखिर ऐसे लड़की से कोई कैसे एडमायर कर सकता है? सो नरेटर ने कहा वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड। एक तो करेला दूसरी नीम चढ़ा। एग्जैक्टली। रंगा सेड लाफिंगली। रंगा था वो हंसते हुए उसने अपनी बात को रखा कि हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। मैं थोड़ा सा निराश हो गया क्योंकि वो लड़का जिसके बारे में मैंने सोचा था कि ये समय से शादी वादी कर लेगा, अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने तो बैचलर रहने का सोच लिया, शादी ना करने का सोच लिया। आफ्टर चैटिंग फॉर लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। लेकिन मैंने सोच लिया, नरेटर ने सोच लिया कि मैं इसकी शादी करा के रहूँगा, चाहे जो हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसकी शादी तो करवाना है मुझे। दिमाग में पूरा प्लान बन गया। रामा राव नीस अ प्रिटी गर्ल ऑफ
of 11. Now, even the girl has also been decided by the narrator कि उसकी शादी अरेंज करवानी है. He decided that he has to get his marriage arranged in this way or that way, and with whom this was also full planned. जिसके साथ इसने शादी करने की सोचा उसका नाम वो थी रामाराव की नीस. रामाराव की नीस 11 साल की एक प्रिटी गर्ल है, एंड शी हैड कम टू स्टे विथ हिम, और वो यहाँ पे रामाराव के साथ रहने के लिए आई है. एक्चुअली शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन. रामाराव नीस वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन. वो एक बड़े टाउन से बिलोंग करती है. सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम. सो शी न्यू, वो उसको वीणा और हारमोनियम प्ले करना अच्छे से आता है. शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस. सो ऑन वन हैंड शी न्यू हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम. नॉट ओनली दैट, शी हैड अ वेरी स्वीट वॉइस आल्सो. उसकी आवाज़ जो है ना वो भी बहुत ही स्वीट है. सो बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड. द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट उसके मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, एक्सपायर हो गया. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. अब चूंकि दोनों नहीं हैं तो उसके जो अंकल हैं, आई मीन रामाराव, उसको अपने साथ यहाँ पे लाए. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर. अब रंगा इस लड़की के लिए एकदम सही लड़का है, और ये लड़की रंगा के लिए मोस्ट सुटेबल ब्राइड. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव's प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी. चूँकि मैं रामाराव के घर अक्सर आता रहता हूँ, इसलिए ये जो लड़की है वो मुझसे काफ़ी फ्री है. आई मीन मुझसे बात करने में वो काफ़ी कंफर्टेबल. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम. अरे मैं सारी बातें किए जा रहा हूँ, सॉरी, मैं उसका नाम बताना भूल गया. रत्ना इट वॉज. उसका नाम रत्ना है, रत्ना. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. I mean प्लान का कैसे मैनिपुलेशन करना है, किस तरीके से रत्ना को, आई मीन रंगा को रत्ना से शादी करने के लिए एकदम से मेंटली प्रिपेयर करना है, इसके लिए पूरा प्लान तैयार हो गया नरेटर के दिमाग में. और इसके सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि रंगा के दिमाग में रत्ना को लेकर के हलचल पैदा करना. आई मीन किसी भी तरह से रंगा रत्ना को देखे और रंगा इसको लाइक करने लगे. सो मैं रामाराव के घर गया और वहाँ पर रामाराव की वाइफ से कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ कुछ बटर मिल्क है. बटर मिल्क मट्ठा है, छाछ. तो हमारे घर में कुछ छाछ है, ऐसा करिए रत्ना को भेज दीजिए, वो छाछ ले आए. सो रत्ना की रत्ना आई. इट वॉज अ फ्राइडे का दिन था. सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहन रखी थी. सो आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम. मैंने उसको अपने कमरे में बैठने के लिए कहा. एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. अब मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि एक गाना गा दे, क्योंकि बताया मैंने इसकी वॉइस भी बड़ी स्वीट है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट शी हैज़ वेरी स्वीट वॉइस, एंड ऑल्सो वन थिंग मोर दैट शी नो हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम बोथ. सो आई रिक्वेस्टेड, आई मीन narrator requested Ratna to sing a song. On one hand, I had called Ratna over here
ऑन द अदर हैंड आई सेंट फॉर रंगा टू, मैंने रंगा के लिए भी रंगा को बुलवा लिया। वेल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, और जिस समय वो गाना गा रही थी, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, ये गाना था। जब वो ये गाना गा रही थी, रंगा रीच द डोर, वही वो समय था, इट वॉज द टाइम व्हेन रंगा रीच द डोर, एंड व्हेन ही हर्ड someone singing in very sweet and melodious voice on harmonium, जब उसने किसी को सुना, किसी की बड़ी प्यारी सी आवाज़ थी, स्वीट सी आवाज़, और वो हारमोनियम पे गाना बजा था, तो वो सीधे अंदर नहीं आया, बल्कि वो बाहर ही रुक गया। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन जो भी सिंगर था, उस सिंगर को देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस था। सो केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़े ही सावधानी से वो झांका। ही पीप्ड इन द रूम वेरी केयरफुली। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, दो ही वाज वेरी केयरफुल इन पीपिंग इन, डिस्पाइट ऑफ हिज ऑल द एफर्ट्स, उसके सारे प्रयास के बावजूद जो कमरे में आ रही लाइट थी वो ब्लॉक हुई, और उस परछाई हल्की सी जो है पहुंच गई रंगा की कि कोई आदमी बाहर है। सो एज सून एज रत्ना परसीव दैट देयर वाज समवन स्ट्रेंजर ओवर देयर, शी एब्रप्टली स्टॉप्ड। रत्ना ने देखा और वहां सामने स्ट्रेंजर को देख करके गाना बंद कर दिया। अब कंडीशन वही है, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लीजिए आप सबसे बढ़िया क्वालिटी का आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, और बड़ी ही सावधानी से धीमे धीमे, सेवरिंग इट्स पील, एक एक चीज संभाल संभाल के उसको खाते हैं, यहाँ तक कि छिलके को भी आप अच्छे से, उसके साथ भी कुछ भी बर्बाद ना हो। मैंने जूसी फ्लेश को खाने के पहले आप पील्स को अच्छे से खाते हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली ये जो क्वालिटी मैंगो है इतना बढ़िया है कि आप इसका एक भी पार्ट बर्बाद करना नहीं चाहते। और बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और इसके पहले कि आप दूसरी बाइट लें, फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और अगली बाइट आप लें, फल आपके हाथ से फिसलता है और फल जमीन पे गिर जाता है। अब बताइए, हाउ डू यू फील, आपको कैसे लगेगा? सिंपल सी बात है, आपको बहुत खराब लगेगा भाई। वही कंडीशन, जैसी निराशा आपको उस आम के जमीन पे गिरने की होगी, वही निराशा रंगा को हुई जब गाना बंद हो गया। रंगा's face showed the same disappointment when singing stopped, जब गाना बंद हुआ तो। So what happens next? We shall continue the story in the next part. Till then, thank you. Have a nice day.